Hi dear students, let's see this question that came in JEE Advanced Paper 2 Physics in the year 2020. This was from the topic of thermodynamics and this was a numeric type question. One of the most beautiful questions in this year's JEE Physics paper. This was slightly unusual from those questions that you would have done in your JEE preparation. So in this video, we are going to talk about what was the beauty of this question, how many of the good students were able to solve it, but they got answer zero to their surprise in the exam, and that kind of stumbled them. They came in a panic state because they simply everything was going correct, and they ended up getting the answer zero. We'll see how they got answer zero. I'm talking about very good students uh, and so basically they kind of got confused, and then we will also see the solution to this. I'm going to present two beautiful solutions, actually one regular solution and one amazingly beautiful solution to this beautiful problem. So let's see what's happening over here. Inside the water, basically there's a small bubble inside the water. Okay, and the outside pressure of the water, we can assume it to be constant, P naught. The bubble gets compressed slightly so that its radius changes by a value of A, which is much smaller than R. And the work done in the process is to be found out in the form of this expression, and the value of x is to be calculated where x is a some numeric value. It is given that the bubble is going to get compressed adiabatically, and the adiabatic exponent has also been given 41 by 30. So we have to find the value of x. Now we need to realize that question doesn't explicitly mention कि किसका वर्क डन निकालना है, but we need to understand that यहाँ पे ये जो bubble है, it is not going to get compressed on its own because outside pressure and the pressure inside is constant, same, which is P naught P naught. One more important thing, we have to neglect surface tension because the question says कि bubble के अंदर का pressure और बाहर का pressure same है, hence we have to neglect the surface tension. So ये bubble अपने आप तो compress नहीं होगा. That means कि there must be an external agent who is actually compressing this bubble slightly so that radius changes by the value of small a. एंड उस एक्सटर्नल एजेंट का ही वर्क डन हमें निकालना है बिकॉज इस प्रोसेस में किया वर्क का मतलब यही हुआ, इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली यू विल गेट द आइडिया दैट प्रोसेस में किया हुआ वर्क, दैट मीन्स देर इज सम एक्सटर्नल एजेंट who is doing this work, and you have to find the work done by external agent. Now if you consider the surface of the bubble, इस सरफेस बबल की सरफेस नॉट द इनसाइड गैस, बबल की सरफेस को अगर मैं सिस्टम मानूं तो उस पर तीन एंटिटीज वर्क कर रही हैं, द गैस इनसाइड, द वाटर आउटसाइड एंड द external agent. So we can say that work done by external plus work done by water plus work done by gas will be equals to zero because change in the kinetic energy of the surface of the bubble will be zero if you compare initially and finally. Now, work done by water can be straight away written as P naught into change in volume, and can we write change in volume as 4 pi r square into A? If you think carefully, the volume has decreased, the radius has decreased slightly. If I draw a better figure over here, so if you see, this was the bubble situation initially जब इसका radius r था, and let us say इसका radius slightly कम हो गया है. Okay, so we are talking about this volume. इस volume की अपन बात कर रहे हैं, correct? So can we write this volume as 4 pi r square dr, जैसे calculus में लिखते हैं 4 pi r square dr. So dr is actually a over here. So 4 pi r square into a. So this is the work done by the water. Okay. Of course, this is not right as per the question. We'll come back to that. But this is what most of the students ended up doing, and we'll see कि what modification we have to do over here. But ये अभी के लिए, of course, this is we'll progress with this. अब अपन वर्क डन बाय द गैस की बात करते हैं. तो वर्क डन बाय द गैस क्या होता है? P1 V1, ठीक है, माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस वन. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. इफ यहाँ पे अपन एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, सो इनिशियल प्रेशर वॉज पी नॉट इन ऑफ द गैस, वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई आर क्यूब टू द पावर गामा, गामा वॉज 41/30 इज इक्वल्स टू प्रेशर फाइनली लेट से पी हो गया 4/3 पाई आर माइनस ए क्यूब टू द पावर 41/30. So this 4/3 pi will
कैंसिल ऑफ, ठीक है। यहाँ से अपन प्रेशर की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो वर्क डन बाई गैस की वैल्यू क्या आती है, P1 is P नॉट, V1 is 4/3 pi r cube, है ना। ये पूरा एक्चुअली, चलो अच्छा अभी पहले वैल्यू डाल देते। P2 की वैल्यू कितनी आएगी, दिस प्रेशर विच इज P नॉट इंटू R की पावर 41/10 डिवाइड बाई R माइनस A की पावर 41/10। सो कैन वी से R अपॉन R माइनस A की पावर 41/10, मेक सेंस। सो दिस इज द प्रेशर इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 pi r cube, which R has become R minus A, right? So this is the expression divided by gamma minus 1. Gamma is 41/30 minus 1, right? So this becomes 11/10. Gamma की वैल्यू कितनी, 41 है, so 41/30 minus this, so this will become 11/30, ठीक है। So अब if this expression में से P नॉट 4/3 pi r cube अपन कॉमन ले लेते हैं, so we will be left with 1, ठीक है। P नॉट बाहर चला गया, 4/3 pi has gone outside, r cube इधर आ जाएगा, राइट। ये r cube जो हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे r cube आ जाएगा। so this expression will be left with r minus, ये वाली वैल्यू एज सच रह जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, r माइनस ए अपॉन r का क्यूब, ठीक है। और ये 41/10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 11/30। so this will become 11/30, so this will become 30/11, मेक सेंस, ठीक है। तो इधर कितना आ गया, ये 310, ये कितना हो जाएगा, 1040/11, ठीक है। P नॉट पाई आर क्यूब, है ना, P नॉट पाई आर क्यूब। और यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस ये हो जाएगा 3 माइनस 41/10, ठीक है। मैं इसको बेस एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, तो 3 माइनस 41/10, सो आर बाई आर कितना होता है, 1 माइनस ए बाई आर, और 3 माइनस 41/10 मतलब कितना हो गया, माइनस 11/10, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ इफ यू डू दी मैथ, तो वी कैन अप्लाई बायनॉमियल थ्योरम। तो 1 माइनस, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है बिकॉज ए वॉज मच मच लेस देन आर, सो जब इसको बायनॉमियल से अपन एक्सपैंड करेंगे तो 1 प्लस एन एक्स टाइप्स लग के खुल जाएगा। तो ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस और ये माइनस फिर से माइनस, सो 11 a/10r, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, अब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ कोर्स कंप्रेशन हुआ था गैस का, सो ऑफ कोर्स द वर्क डन मस्ट हैव बीन नेगेटिव। 11 gets cancelled, 0 and 0 becomes 4, so we are left with P naught pi r cube by r becomes r square into a. So if you see, this is the work done by the gas, which of course is the exact negative of the work done by the water. So if you add these two expressions, work done by water plus work done by gas becomes 0, है ना, and work done by external will come out to be 0. So many of the students were able to do this, and they were stumped in the exam, and eventually they left this question and they went ahead. Now how to get the hint, इसमें हिंट कैसे लगेगी, इफ यू सी दिस एक्सप्रेशन, ये जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है P नॉट पाई आर स्क्वायर ए, है ना, यहाँ पे P नॉट पाई आर ए स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे ए की एक हायर पावर की बात हो रही है। अगर मैं इस बायनोमियल एक्सप्रेशन में एक एक्स्ट्रा टर्म लिखता तो डू यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ए स्क्वायर आता। बायनोमियल में मैंने एक ही एक्सप्रेशन, मतलब एक ही टर्म लिखा है, अगर मैंने एक टर्म और लिखा होता सो आई वुड हैव गॉटन ए स्क्वायर का टर्म। So in this question, we don't have to neglect that a square का term. Now, this is the idea that we are getting from this particular expression. I will also tell you very fundamental reason why do we need to do this when I will present another solution of this question. ठीक है, तो फिलहाल let's not neglect the a square का term. So we will also have to write the a square का term over here. Okay, यहाँ भी हमने बदमाशी करी है, so if you will have to also incorporate the work by the water by writing a square का term. तो मैं इसको modify कर रहा हूँ, ठीक है, I am going to modify this. तो let me write, this is wrong, so वर्क बाई वाटर को अब मैं लिखता हूँ P डेल्टा V, P is P नॉट, ठीक है। डेल्टा V कितना हो जाएगा, वी हैव टू राइट द चेंज इन द वॉल्यूम, ठीक है। तो बेसिकली पहले वॉल्यूम थी 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर माइनस ए की होल क्यूब, ओके।
सो यहाँ से वी कैन टेक आउट 4/3 पी, कितना हो जाएगा 4/3 पी नॉट, है ना, पाई, और आर क्यूब माइनस आर माइनस ए का होल क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर अपन लगाएं ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो कितना होता है ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, एंड प्लस बी स्क्वायर। मेक सेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 4p0/3 पाई, ये बन गया ए, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। Then this will be minus RA and this will be minus 2RA. So this will be minus 3RA. Okay. And we are going to get A square as well. ठीक है, A square as well. ठीक है, I hope I'm right. R square minus RA, R square minus 2RA. Yes. ठीक है. Now, if you multiply this A over here, so this will become AR square, AR square, AR square. This will become A square and this will become A cube. We can neglect A cube because in the question there is no term of A cube. तो अपन A cube के term को neglect कर सकते हैं. So what we will get 4p0 pi, ठीक है, A ये 3r स्क्वायर हो जाएगा और ये 3ra स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा ये 3 से, ठीक है, एंड वी विल बी लेफ्ट विद आर स्क्वायर ए, है ना, माइनस आर ए स्क्वायर, ठीक है, ए क्यूब हैज बीन निगलेक्टेड। सो आई एम होपिंग यू अंडरस्टैंड दिस। तो इफ यू सी ये जो टर्म आई थी पहले पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर है, पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर है, ये वाली टर्म अभी भी प्रेजेंट है। ये एक और मिनिस्क्यूल सी टर्म आ गई है। ऑफ कोर्स इफ यू सी दिस सेकंड टर्म दैट विल बी very very small in comparison to the first term because a is very very small in comparison to r, but since the question is asking exactly about that term so we are not going to neglect this। तो मेरे पास एक ये टर्म एक्स्ट्रा आ गई, ठीक है। अब इधर भी सेम काम करना पड़ेगा, ठीक है। जब जब मैं बायनोमियल से एक्सपैंड करूंगा तो अब मैं यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल ये, ठीक है। तो अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब बायनोमियल में मैंने अभी तो एक ही टर्म लिखा था, ठीक है, एन इंटू 1 + nx। अब दूसरा टर्म क्या आएगा nc2 × x² भी आएगा, ठीक है। तो nc2 × x² और इस माइनस की वजह से वो माइनस बन जाएगा, राइट। तो nc2 मतलब n × n - 1/2, तो कितना आएगा -11/10 इंटू दिस -1 मतलब -21/10 बाई 2 इंटू x², तो दैट विल बिकम a² / r²। ये वाली टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो ये टर्म तो हमारे पास पहले से प्रेजेंट थी, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये माइनस माइनस माइनस, तो 3 माइनस एंड हेंस वी आर गोइंग टू गेट 1 माइनस, ठीक। ये r³ / r² r बनेगा, ठीक है। 11 गेट्स कैंसल्ड, ठीक है। 40, सो लेट्स राइट अदरवाइज 40 बाई, ठीक है, ये 11 कैंसिल हो चुका है, 40/10 10 100, ठीक है। 21 इज लेफ्ट, 2 इज लेफ्ट, ओके, पी नॉट इज लेफ्ट, पाई इज लेफ्ट, आर इज लेफ्ट, a² इज लेफ्ट, ठीक। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये 2 से ये 20 हो गया, ओके। सो 21 2 सा कितना होता है, ओके लेट्स मेक इट, एक बार वापस कैलकुलेशन चेक कर ले। 40 इंटू, ये 40/11 है ना, तो एक सेकेंड, 40, ये कितना आ रहा है 40, तो मैंने ऐसे लिख दिया, 11 कैंसिल हो गया, 10 10 सा 100 लिखा हुआ है ना, और 21 एस सच लिखा हुआ है, 2 एस सच लिखा हुआ है, पी नॉट एस सच लिखा हुआ है, आई थिंक इट्स राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो अब इफ वी सी इसको एक बार सॉल्व करते हैं, 21 इंटू कितना हो रहा है 42, 420/100, ठीक है, 420/100, तो ये कितना हो गया 4.2 इन माई ओपिनियन, है ना, पी नॉट पाई आर ए स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज -4p0 पाई आर स्क्वायर ए। दिस इज द वर्क डन नाउ, ठीक है, ये हमारा वर्क डन आ रहा है, ठीक। ओके, नाउ इफ यू सी केयरफुली, तो अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, और -4p0 पाई आर ए स्क्वायर,
एंड इधर से 4.2 पी नॉट पाई आर स्क्वायर, ये वाली टर्म ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो अब कैन वी राइट दी वर्क डन। देखो ये टर्म और मतलब 4 p0 pi r स्क्वायर जो पहले कैंसिल हुई थी वो तो कैंसिल हो जाएगी, जो बची हुई टर्म है वो क्या है 4 p0 pi r a स्क्वायर, ठीक है। और इधर कितना आ रही है 4.2 आ रहा है ना, 4.2 p0 pi r a स्क्वायर, ये ऐड हो जाएगा, ठीक। सो कैन वी राइट वर्क डन बाई वाटर प्लस वर्क डन बाई गैस विल बी क्या आया, -4 p0 pi r a स्क्वायर -4 p0 pi r a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4.2, तो 4.2 p0 pi r a स्क्वायर। सो दिस बिकम्स, हमें किस फॉर्म में लाना है, 4 p0 pi r a स्क्वायर कॉमन ले लेना है इसमें से। तो अगर इसमें से -4 p0 pi r a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1, है ना। और यहाँ बचेगा 1.05, ठीक। तो 1.05, ओके, बिकॉज 1.05 इंटू 4 कितना होता है 4.2 होता है, ठीक है। तो ये हमारा यार, इसका मतलब वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, नेगेटिव ऑफ कोर्स दिस, राइट। हेंस वी कैन से दैट this will be 4 p naught pi r a square into 2.05, which means कि value of x will be 2.05, ठीक है। तो ये guys पहला solution था। I hope you would have understood, I hope you would have loved it. Now let us see the more beautiful solution, like दो line में answer। Let's see that solution which you're going to love. So now, if you see the work done by the gas in an adiabatic process, so if we draw the graph, okay, pressure volume, so adiabatic process कुछ इस टाइप का होता है, right? Now for a small change in volume, since bubble का volume बहुत ही कम change हो रहा है, so for a small change in volume, we can consider a small part of it as a straight line, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट डिग्री अप्रोक्सीमेशन लें तो ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा माना जा सकता है फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन दी वॉल्यूम, राइट। सो आई एम ड्राइंग अ ग्राफ ओवर हियर एंड आई एम जूमिंग दैट, सो बेसिकली सो दैट यू कैन सी, लाइक इस पार्ट को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लैरिटी से दिखे, ओके। सो हियर द वॉल्यूम वाज इनिशियल वॉल्यूम, ओके, एंड यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया था, एंड हियर द प्रेशर वाज P initial, okay, and here the pressure was P final, let us say, ठीक है। So this is basically a trapezium will be formed. So if we find the area of this trapezium, let's find the area of this trapezium, ठीक है, area. So that will be equals to half into this side plus this side, so that will become P initial plus P final. P final को we can write P initial plus delta P, okay, P final को we can write P initial plus this will be delta P, ठीक है। So half into sum of sides into change in volume, which is delta V, right? So if we just so this will become 2 pi by 2 तो होता है pi, so pi delta V plus delta P into delta V upon 2, okay। Now if you think carefully, pi into delta V, so if you will be able to see that pi into delta V ये वॉल्यूम है, ओके। अब अगर अपन सेकेंड डिग्री टर्म को निग्लेक्ट कर देते हैं तो ये वाला जो टर्म है वो इस टर्म के सामने निग्लेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर हम सेकेंड डिग्री अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं तो वी विल से कि ये जो टर्म है इस टर्म के सामने बहुत स्मॉल है, राइट। पी आई इंटू डेल्टा वी के सामने डेल्टा वी बाई टू इज ऑलरेडी वेरी वेरी स्मॉल। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू पी आई इंटू डेल्टा वी। रिमेंबर फर्स्ट डिग्री अप्रोक्सीमेशन में पहले ले चुका हूँ जब मैंने इसको स्ट्रेट लाइन मान लिया है। नाउ आई एम सेइंग कि इसका जो ये जो ट्रेपेजियम बन रहा था इसका एरिया कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं सेकंड डिग्री टर्म को निग्लेक्ट कर देता हूं तो, ओके। हेंस इफेक्टिवली इफ यू सी व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अज्यूमिंग दैट ये जो एरिया है ट्रेपेजियम का विच इज इंडीड द वर्क डन बाय द adiabatic वर्क डन बाय द गैस इन द adiabatic process, that eventually I am saying कि this becomes initial pressure या pressure into change in volume, बिकॉज मैंने प्रेशर को इफेक्टिवली कांस्टेंट मान लिया है इनटू चेंज इन द वॉल्यूम, ठीक है। अगर तुम लॉजिकली सोचो तो वाटर का वर्क डन कैसे लिखा जाएगा, वाटर का वर्क डन भी तो यही लिखा जा रहा है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। इफ यू थिंक केयरफुली वाटर का वर्क डन भी यही एरिया आएगा, प्रेशर
जो कि पी नॉट था इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अपन क्या कर रहे थे, बबल को थोड़ा सा कंप्रेस कर रहे हैं, तो वाटर का जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, प्रेशर इनटू चेंज वॉल्यूम, तो पी नॉट इनटू चेंज वॉल्यूम। हेंस एंड वाटर का प्रेशर, वाटर का जो वर्क डन है पॉजिटिव है, गैस का वर्क डन नेगेटिव है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये इस साइड से इस साइड गया है, तो ये तो मतलब मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने वर्क डन का, रियलिटी में दी वर्क डन विल बी नेगेटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव टर्म आएगी, ठीक है। सो बेसिकली ये वाला एरिया इस वाटर के वर्क डन से पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है एंड वी गेट जीरो वर्क डन। I hope you understood why are we getting zero work done, because we are neglecting this triangle, which of course is not very unreasonable thing. इस triangle के area को हम neglect कर रहे हैं इस rectangle के सामने, because of course this is very very small and water, so ये rectangle का जो area है ये water के work done के equal है of course, because अगर मैं rectangle का area तुम्हें दिख रहा है ये isobaric process जैसा है, मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ पे ऐसे आ जाऊँ so it will be isobaric process। सो क्वेश्चन में इफेक्टिवली हमसे ये वर्क डन निकलवाया गया था, मतलब इफेक्टिवली हमें क्या करना है, ये जो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वर्क डन है वाटर माइनस एडियाबैटिक प्रोसेस में गैस का, वो ये ट्राइंगल है जो कि हमें निकालना था। जो एक्सटर्नल एजेंट है वो एक बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है विच इज दिस ट्राइंगल, एंड हेंस वो सेकंड डिग्री टर्म आ रही है वर्क डन की। So basically this triangle is effectively what we need to find if you are understanding. Hence if you find the area of this triangle which is delta p into delta v by 2, तो हम इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालते हैं, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। डेल्टा पी इंटू डेल्टा मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल हैज टू बी पॉजिटिव बिकॉज ही इज कंप्रेसिंग इट एंड द बबल मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, मतलब बबल पे कंप्रेस कर रहा है वो और बबल की सरफेस अंदर ही जा रही है। सो डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी बाई टू, ओके। सो डेल्टा वी बाई टू इंटू डेल्टा पी, ठीक है। डेल्टा पी यू नो दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो स्लोप होती है, ठीक है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी दैट इज गामा पी बाई वी, राइट। तो इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा पी को व्हाट वी कैन राइट गामा इंटू पी अपॉन वी इंटू डेल्टा पी, ठीक है। बस अब वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक। गामा वॉज 41/30, ठीक है। टू इज ऑलरेडी प्रेजेंट, पी प्रेशर इज पी नॉट मीन प्रेशर, ठीक है। एंड डेल्टा वी को अपन लिख सकते हैं 4 पाई r² इंटू ए, ठीक है। एंड का स्क्वायर भी होगा, डेल्टा वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को वी कैन राइट फोर मीन वॉल्यूम 4/3 पाई r³ ओके। सो लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग, कितना आ रहा है यहाँ पे 4 पाई, तो देखो 4 यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 4 पाई विल बी लेफ्ट, ठीक है। r² टू द पावर 4/r³, तो एक r बचेगा, a स्क्वायर बचेगा, कैन यू सी दैट वी आर गेटिंग a स्क्वायर का टर्म, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 4 पाई और ये 3 बचेगा, ठीक है, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, राइट। 41/60, ठीक है, पी नॉट, कैन यू सी दिस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 320, ठीक है। और ये 4 से या 4 पाई को तो मैं अलग ही रखना है तो उसको ऐसे ही रख देते हैं, कंट्रोल ई, ठीक है। इरेजर एक्चुअली कंट्रोल ई से आता है तो पी, ठीक है। अरे यार वो 4 था ना, माय बैड अगेन, आई गेस दैट वाज 4 पाई, ठीक। सो इफ यू सी व्हाट आर वी गेटिंग 41/20 इज 2.05, okay, into p naught into 4 pi r a square. So this is our x. I hope you would have loved this solution. It was one of the most brilliant solution. इससे तुम्हें ये भी क्लियर हुआ होगा कि क्यों सिंगल डिग्री टर्म कैंसिल हो जा रही है, अगर हम सेकेंड डिग्री टर्म को ना लें तो वर्क डन क्यों जीरो आ जा रहा है। बिकॉज अगेन फिर से मैं बताता हूँ, जब मैं फर्स्ट डिग्री का अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ तो आई एम ट्रीटिंग दिस एज अ स्ट्रेट लाइन which makes the area of the which makes the area as trapezium of the work done like area of trapezium represents work done by the gas in the adiabatic process। उस ट्रेपेजियम में इस ट्राइंगल को अपन इस रेक्टेंगल के सामने अगर निग्लेक्ट कर देते हैं, बिकॉज ट्राइंगल का एरिया रेक्टेंगल के सामने वैसे तो नेग्लिजिबल ही है, तो निग्लेक्ट कर देंगे तो क्या हो रहा है कि ये जो वर्क डन है गैस की वो वाटर के वर्क डन के इक्वल हो जा रही है। तो इफेक्टिवली यहाँ पे जो एक्सटर्नल एजेंट है उसने नेग्लिजिबली स्मॉल वर्क किया है, नेग्लिजिबली स्मॉल,
तो वही हमसे निकलवाया गया था और वो सेकंड डिग्री टर्म बन रही है. So I hope you would have understood. I hope you would have loved this second solution. That's all, friends.